Okay, hello everyone, welcome back to Class Azad, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important concept of the electrochemistry, that is electrolyte, non-electrolyte, and two types of electrolyte, one is strong and other is weak. At the previous lecture we have discussed oxidation reduction in terms of oxidation state, and also very important, very beautiful concept of electrochemistry, that is oxidizing and reducing agent. That what is oxidizing agent and what is a reducing agent. But today we will discuss, which is very important for two types of electrochemical cell, that is galvanic cell and electrolytic cell. That is the basic concept for electrochemistry. That one is electrolyte and other is non-electrolyte. So, what is electrolyte and what is non-electrolyte? Remember, all those substances called electrolyte which ionize in water and conduct electricity. All those substances as electrolyte ionize in water and conduct electricity. And what is non-electrolyte? Which cannot ionize in water and cannot conduct electricity. So what is electrolyte? पंखा लगा दे अपने लिए. What is electrolyte? All those substances called electrolyte which ionize in water and conduct electricity. And what is non-electrolyte? All those substances called non-electrolyte which cannot ionize in water. How? For example, किस तरह? देखिए, अगर हम NaCl को वाटर में डाल दें, so NaCl convert into ions, Na positive and Cl negative. So the name of such a substance is electrolyte. Why they are electrolyte? Because they ionize in water. So whenever a substance ionizes in water, they will conduct electricity. So such a substance which ionize in water and conduct electricity, that is known as electrolyte. And what is non-electrolyte? अब इसी चीज़ का आप उलट कर दें, जो वाटर में आयोनाइज नहीं होता, मतलब वाटर में आयंस में कन्वर्ट नहीं होता, तो सारी बात है, जब वाटर में आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, सो दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो है वो आयंस करते हैं. जब आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. सो सच ए सब्सटेंस विल कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. फॉर एग्जांपल, बेंजीन C6H6, ये सब्सटेंस अगर आप पानी में डाल दें तो आयंस में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है एंड द कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉन पोलर. तो जब आयंस में कन्वर्ट नहीं होता ड्यू टू नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो जारी बात है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी. सो बेंजीन इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इसी तरह शुगर, मतलब कोई भी सब्सटेंस
जब पानी में आयोनाइज ही नहीं होता सो दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और अगर वाटर में आयोनाइज होता है सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। नोट, हमेशा याद रखें ऑल एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट इज इलेक्ट्रोलाइट। जितनी भी एसिड्स है, जितनी भी बेस है और जितनी भी सॉल्ट्स है, सब इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों इलेक्ट्रोलाइट है? क्योंकि एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट आयोनाइज वाटर एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। अब इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के हैं, डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। देखिए इलेक्ट्रोलाइट है तो जारी बात है आयोनाइज तो होगा, लेकिन आयोनाइजेशन डिफरेंट तरह का है। बाज़ सब्सटेंसेस ऐसे हैं कि उसको जब आप वाटर में डालते हैं सो वो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है। कम्प्लीटली आयोनाइज का मतलब है कि सपोज़ अगर आप किसी सब्सटेंस के 100 मॉलिक्यूल पानी में डाल दें तो 100 के 100 मॉलिक्यूल में ही आयोनाइज होगा। चलो अगर 100 में 100 आयोनाइज नहीं हो गए, लेकिन 100 में 99, 98, 95, 90 प्लस आयोनाइज हो गए, तब भी आप कह सकते हैं कि द आयोनाइजेशन इज़ व्हाट कम्प्लीटली। लेकिन बाज़ ऐसे सब्सटेंसेस है कि सपोज़ अगर आप उस 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में डाल दें, उन 100 मॉलिक्यूल में से कोई 5-10 मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं, बाकी 95 मॉलिक्यूल जो है वो अनआयोनाइज फॉर्म में होता है। सो सच अ सब्सटेंस जिसकी एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा हो, कंप्लीट हो, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन कम हो so that is weak electrolyte. So how you can define what is strong electrolyte? The electrolyte which ionize completely in water. And what is weak electrolyte? Electrolyte which partially ionize. They are completely ionized, they are partially ionized. So electrolyte which ionize completely, they are strong electrolyte, and the electrolyte which ionize partially, they are weak electrolyte. सारी बात है, जब इसने completely ही ionize होना है तो large amount of electricity pass करेगा, और इसने जो पार्शियली ही आयोनाइज होने हैं तो थोड़े से आयंस बनने हैं, तो सारी बात है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। सो इसी वजह से हमारी कोशिश होती है कि जो घरों में बैटरी वगैरह इस्तेमाल होती हैं, लेड स्टोरेज बैटरी या जो भी हो, उसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दे आयोनाइज completely. So more amount of ions will produce and more amount of electricity will also conduct. इसमें weak electrolyte इस्तेमाल नहीं होता. So two types of electrolyte depend on extent of ionization. अगर extent of ionization ज़्यादा है so that is strong electrolyte, अगर ये कम है so that is weak electrolyte. Remember, जितने strong acids, base एंड ऑल सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जो वीक एसिड एंड वीक बेस है दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक एसिड एंड वीक बेस, they are weak electrolyte, and strong acid and strong base and all salts, they are strong electrolyte. हाँ, सम सॉल्ट ऐसे भी हैं, सम सॉल्ट ऐसे हैं
जो एज वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन मैक्सिमम सॉल्ट जो है दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन ना जितनी भी एसिड्स बेस है एंड सॉल्ट दे आर इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो वीक एसिड बेस है दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस मीन्स like hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, hydrogen iodide, HCl4 etc. ये strong electrolyte है, they are strong acid। और जितने strong base है like NaOH, KOH, लिथियम OH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, मतलब OH जब किसी मेटल के साथ हो दे आर स्ट्रॉन्ग बेस, सो दे आर आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वाई? बिकॉज वेन एवर पुट इन वाटर द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन मीन्स दे आयोनाइज completely, and also salt like NaCl, NaNO3, KCl, KBr etc. etc. जितनी भी सॉल्ट्स है मैक्सिमम दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जितनी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है दे आर आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, जो वीक एसिड्स है वीक बेस लाइक वीक एसिड HF, एसेटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड etc. They are weak acids, so they are weak electrolyte. And weak base like ammonium hydroxide, not sodium hydroxide, which is called caustic soda, they are strong electrolyte because they are strong base. Ammonium hydroxide, there is a weak base, so they are weak electrolyte. So once again, what is electrolyte and non-electrolyte? All those substances called electrolyte which ionize in water and conduct electricity, and there is non-electrolyte which cannot ionize in water and can't conduct electricity. For example, benzene, glucose and so on, that is non-electrolyte, and all acids, all base and all salts are electrolyte. Electrolyte is two types, depend on the extent of ionization. अगर वाटर में completely ionized हो रहा है, extent of ionization ज़्यादा है, complete means ज़्यादा है, that is strong electrolyte, और अगर वाटर में partially ionized होता है, extent of ionization कम है, so that is weak electrolyte. तो सारी बातें जब इसने ज़्यादा आयोनाइज होना है, so more amount of current will pass, जब इसने कम ही आयोनाइज होना है तो इसमें करंट ही कम पास होगा. So that is all about electrolyte, non-electrolyte, and two types electrolyte, strong and weak. बात समझ आ रही है ना सबको? हाँ, कभी कभार क्वेश्चन आता है, कम ही आता है, यही क्वेश्चन 9 केमिस्ट्री में आता है कि जी इलेक्ट्रोलाइट क्या है, या क्वेश्चन पूछा जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसके एक एग्जांपल दे दें. हाँ, कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है जी व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग वीक भी पता है विद एग्जांपल. कभी कभार ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि जी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. सारी बातें जब उन्होंने डिफरेंस पूछा है तो फिर आपने 2-3 डिफरेंस लिखने हैं, सेंटर में लाइन लगा के, एक साइड पे इलेक्ट्रोलाइट और दूसरी साइड पे नॉन इलेक्ट्रो, यही चीज़ें लिख दी. लेकिन आपने किस तरह लिखना है मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट आर दोज which ionize in water, they are ionized in water, and non-electrolyte are those which cannot ionize in water. They can and they cannot. So number 2, electrolyte can conduct electricity and solution or molten form, but non-electrolyte can't conduct electricity and any state.
किसी भी स्टेट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बिजली पास नहीं करती, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Number 3, there are two types of electrolyte, one is strong and other is weak. No types of non-electrolyte. इसके दो टाइप्स है, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई टाइप्स नहीं है. बात समझ आ रही है ना? एंड नंबर 4 एग्जाम्पल दे दे. एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज HCl HNO3, NaOH and so. And the example of non-electrolyte is acetic acid, HF, carbonic acid. क्या फार्मूला है कार्बोनिक एसिड का? H2CO3, yeah, and ammonium hydroxide etc. तो ये 4 डिफरेंस बन गए इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट. हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वाटर जो है एज इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है या नहीं. प्योर वाटर इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम इसलिए लेते हैं कि अगर सपोज़ हमारे पास 1 मिलियंस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो, उसमें कोई एक या मैक्सिमम 2 वाटर आयोनाइज होते हैं. तो सारी बात है, हम कह सकते हैं कि अगर 1 मिलियंस में 1-2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आयोनाइज, तो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है, तो हम कहते हैं होता ही नहीं है. सो प्योर वाटर इज़ ऑलवेज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. मतलब वाटर खुद इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वाटर सब्सटेंस खुद इलेक्ट्रोलाइट नहीं है. Substance is what? Substance which is pure form of the matter. वाटर खुद इलेक्ट्रोलाइट नहीं है. हाँ, लेकिन अगर इसमें आपने और सब्सटेंस डाल दिया, लाइक फॉर एग्जांपल NaCl या एसिटिक एसिड या सो, तो फिर जो है उसमें फ्री आयंस आ जाते हैं, वो आयनाइज हो जाता है, फिर वो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट, सो दे कैन कंडक्ट. लेकिन वाटर जो है प्योर वाटर खुद दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. Non-electrolyte. So what are the difference between electrolyte and non-electrolyte? हाँ, कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं कि जी what are the difference between strong and weak electrolyte? तो फिर आपने क्या करना है, सारी बातें 2-3 डिफरेंस तो लिखने हैं. जब 2-3 नंबर आपने लेने हैं, 2 नंबर लेने हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है. तो आपने कहना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस है which ionize completely and they are ionized partially. देखिए, पहले तो आप ये कहते थे कि ये आयोनाइज हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज ही नहीं हो रहा. अब डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में. अब आयोनाइज तो दोनों है, दोनों हो रहा है, स्ट्रॉन्ग भी वीक भी, लेकिन एक के साथ लिख दे कि दे आयोनाइज कंप्लीटली बट दे आयोनाइज पार्शियली. सारी बात है, जब ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, सो मोर आयंस विल प्रोड्यूस, सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर. They will conduct electricity more, but they conduct electricity but at small extent, that is small amount. क्योंकि थोड़े से आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो होगी लेकिन स्मॉल अमाउंट में. और तीसरा जो है वो एग्जांपल दे दी. all strong acid, strong base and salt, acetic like HCl, nitric acid, sulfuric acid, like base sodium hydroxide, potassium hydroxide, and salt like NaCl, NaBr, KCl, and so they are strong electrolyte. And all weak acid, weak base like acetic acid, HF, and ammonium hydroxide, that is
weak electrolyte. So that is all about what is electrolyte, what is non-electrolyte, and there are two types of electrolyte, strong electrolyte and weak electrolyte. Thank you very much for watching this video.